morning, dear students. We have started with a new chapter, Structural Organization in Animals. In this chapter, we have discussed about that how there is presence of cells which will be organizing properly to form tissues, and tissues will be organizing in different ways to form organs and the organ systems. So organs having coordinated activity will be forming an organ system. So that has been discussed by us so far in this chapter, which is the basic introduction of this chapter, right? Now we have started that any organ in our body is made up of mainly 4 tissues. हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन को कंसिडर कर लेते हैं तो भी उसमें कितने टिश्यूज प्रेजेंट होंगे? 4 टिश्यूज प्रेजेंट होते ही हैं. However, the pattern and proportion of these tissues might be slightly variable, right? Sometimes the layer of muscles, that is the muscular tissues will be more. Sometimes there will be more amount of nerve cells, right? So amount of tissues present will slightly vary, but still all organs will be made up of 4 major tissues, which was epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and the nervous tissue. In that, we have started with the first type of tissue called epithelial tissue. In epithelial, we have discussed that epi is upon, thelia is a layer. So this is the layer which will be present as a covering or as a lining of most of the organs. जो भी organs हैं उनके सबसे बाहर का जो covering होगा, that will be the epithelial tissue always. Even it can be the inner lining of any organ. जरूरी नहीं है कि सिर्फ externally cover करे. Internally also the innermost lining of all the organs will also consist of the epithelial tissue. हमने बात की थी कि epithelial tissue के जो cells होते हैं, they are very compactly arranged, very close to each other. So they lack any intercellular spaces. मतलब cells इतने करीब located होते हैं एक दूसरे से, इतने नजदीक होते हैं कि इनके बीच में कोई भी तरह की मैट्रिक्स नहीं होती, या अगर हो तो भी बहुत ही कम होती है. So cells are very compactly arranged. Okay. In epithelial tissue we have discussed that 2 तरह के epithelial tissue होते हैं. एक होता है simple epithelial tissue और एक होता है compound और complex epithelial tissue. Simple epithelial tissue मतलब यहाँ पे सिर्फ एक single layer present होगा cells का. There will be presence of a single layer of cells which is called simple tissue. And if there are 2 or more layers of cells arranged, it is known as compound epithelial tissue. तो सबसे पहले हम बात करते हैं simple epithelial tissue की. तो simple epithelial tissue हमने बात की थी that it is of 3 main types. Simple epithelial tissue is of 3 main types. The first is the squamous epithelial tissue, squamous. Second is cuboidal epithelial tissue, and the third one is columnar epithelial tissue. मतलब हम जब सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं तो एक चीज क्लियर है कि होने क्या वाला है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. एक ही लेयर होगा सेल्स का, ठीक है. तो सिंगल लेयर में कितने टाइप्स हैं? 3. स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. नाउ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स. सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट. मतलब बहुत ही ज्यादा चपटे, राइट? ऐसे फ्लैट सेल्स होते हैं. दे अपीयर जस्ट लाइक टाइल्स. जैसे टाइल्स कैसी होती है? एकदम स्ट्रेट होती है और पतली होती है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे ये सेल्स भी जो होते हैं वो एकदम ही फ्लैट होते हैं. एंड दे हैव इरेग्युलर बाउंड्रीज. इरेग्युलर बाउंड्रीज मतलब उनकी जो बॉर्डर होती है वो काफी वेवी बॉर्डर होती है. आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है. ये मल्टी लेयर नहीं है, राइट? यू आर ऑब्जर्विंग इट लाइक दिस.
तो आप ऊपर से भी देख रहे हो और साइड से भी देख रहे हो, ऐसा आप व्यू ले रहे हो. यू आर टेकिंग अ 2-dimensional इमेज ऑफ इट. अदरवाइज दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. अगर आप साइड से देखोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. अगर आप ऊपर से देखोगे यू विल सी दैट each cell is having a wavy boundary, a irregular boundary. So this epithelium is also known as, it is also known as pavement epithelium. It is also known as pavement epithelium. और एक इसका नाम है tessellated epithelium. इसे क्या कहा जाता है? tessellated epithelium. तो पहले हमने मेंशन किया कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, वो तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं. सेकेंडली, सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं. उनकी बाउंड्रीज कैसी होती है? इरेग्युलर बाउंड्री होती है. इन्हें पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है या तो टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनमें नहीं के बराबर है. देयर आर नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इन दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम. तो ऐसा एपिथेलियम कहाँ पे देखने को मिलता है? तो हम मेंशन करते हैं लोकेशन. सो लोकेशन इज लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. पहला लोकेशन हमें जो याद रखना है वो है ब्लड वेसल्स. जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है मेनली, राइट. तो ब्लड वेसल्स में इनर मोस्ट लेयर और कैपिलरीज में सिर्फ एक ही लेयर होता है, वो है एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें भी स्क्वैमस, मतलब बिल्कुल ही फ्लैट सेल्स होते हैं. द रीजंस फॉर प्रेजेंस ऑफ द फ्लैट सेल्स इन ब्लड कैपिलरी इज व्हाट? इट प्रमोट्स रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस. क्योंकि अगर उसकी जगह पे थिक वॉल वाले क्यूबॉइडल या कोलमनार सेल्स होते तो एक्सचेंज जो है, क्योंकि कैपिलरी तो क्या करता है? ऑक्सीजन या CO2 को डिफ्यूज करता है, राइट, इनटू द सेल्स. मोर ओवर इट आल्सो ट्रांसपोर्ट सेवरल सब्सटेंसेस इनटू द सेल्स and take several waste products from the cells into the capillary. तो ये रैपिड ट्रांसपोर्ट करने के लिए वॉल जो है वो कैसी होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए. तो अगर ये तरह स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है तो वॉल थिन रहती है और एक्सचेंज जो है दैट बिकम्स वेरी रैपिड. अनदर सच लोकेशन इज द एयर सैक ऑफ एल्वियोलाई. एयर सैक ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में भी यही रहता है, डिफ्यूजन करना होता है गैसेस का. एल्वियोलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लंग्स में, राइट. तो लंग्स जो है उसमें जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है उसकी वॉल का जो एपिथेलियम है दैट इज आल्सो स्क्वैमस एपिथेलियम. देयर आल्सो गैसेस आर रैपिडली एक्सचेंज. ठीक है, तो ये दोनों लोकेशन याद रखने हैं एंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट इट हेल्प्स और इट प्रमोट्स डिफ्यूजन. मतलब जहां कहीं भी रैपिड डिफ्यूजन होने वाला है वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. एट ऑल द प्लेसेस वेयर एक्सचेंज हैज टू बी वेरी रैपिड बिटवीन द सेल्स और बिटवीन सेल एंड द ब्लड, राइट. तो वहां पे जो लाइनिंग में जो एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है वो कौन सा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम. वापिस एक बार देख लेते हैं. स्क्वैमस एपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बाउंड्रीज इरेग्युलर होती है. पेवमेंट एपिथेलियम या टेसेलेटेड एपिथेलियम कहा जाता है. लोकेशन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. सेकेंड लोकेशन एयर सैक्स दैट इज alveoli of lungs. That is also lined up by squamous epithelium. And it promotes diffusion, means the places where diffusion has to take place rapidly, there this type of epithelium, that is squamous epithelium, will be present. The next is the cuboidal epithelium. Now cuboidal epithelium itself means कि यहाँ पे जो cells होंगे they will be cube-like cells. So there is presence of cube-like cells with centrally located nucleus. ठीक है, तो क्यूब तरह के सेल्स दिखेंगे, क्यूब शेप के सेल्स होंगे एंड देयर विल बी अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वेयर इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. हमने ये तो बात कर ली कि ये कैसे सेल्स हैं? फ्लैट. और ये कैसे सेल्स होते हैं? क्यूब की तरह होते हैं, राइट. सो दीज आर प्रेजेंट
their location is the ducts of glands. पहला लोकेशन क्या है? ducts of glands. ग्लैंड्स जो होती है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद क्या आएगा? सलाइवरी डक्ट्स आएंगी. तो जो डक्ट्स होती है उनके लाइनिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. These are the cells which will be present in the lining of the ducts, right? Ducts of what? Ducts of different types of glands. ऐसा नहीं है कि सलाइवरी ग्लैंड्स एक ही होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती है, राइट? तो ऐसी हर एक ग्लैंड्स के डक्ट में क्या प्रेजेंट होगा? There will be presence of the cuboidal epithelial tissue. Moreover, it is also present in tubular parts of nephron. तो पहला लोकेशन है ducts of the glands और दूसरा लोकेशन क्या है? ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. ट्यूबुलर पार्ट्स मतलब जो नेफ्रॉन होता है उसमें आपने पढ़ा होगा दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है पूरा ही, राइट, पीसीटी डीसीटी जिसे कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो लाइंड अप विद क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स में एक मॉडिफिकेशन भी होता है, दैट इज द क्यूबॉइडल epithelium has presence of microvilli, in proximal convoluted tubular part. देखिए हमने क्या बात की कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल? तो एक तो ग्लैंड्स होती है उनकी डक्ट में, दूसरा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो होता है उसके ट्यूबुलर पार्ट में, पर नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में आता है पीसीटी भी आता है और डीसीटी भी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यही क्यूबॉइडल सेल्स के पास, जैसे कि ये मैं क्यूबॉइडल सेल ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्यूबॉइडल सेल्स के पास क्या होगा? माइक्रोविलाई. व्हाट विल बी प्रेजेंट? माइक्रोविलाई व्हिच विल बी इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर रैपिड अब्जॉर्प्शन. तो पीसीटी जो साइट है वहां पे बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ वाटर एंड ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो फिल्टर हुए हैं. तो ये यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल में थोड़ा मॉडिफिकेशन है. इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्यूबॉइडल सेल्स दे आर विच टाइप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स? सेल्स विथ ब्रश बॉर्डर, राइट? तो ऐसे माइक्रोविलाई वाले क्यूबॉइडल सेल्स भी होते हैं. तो क्यूबॉइडल सेल का जो फंक्शन रहता है वो मेनली absorption का फंक्शन रहता है. इट इज मेनली मेंटेन फॉर absorption ऑफ द substances. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सेल्स, columnar epithelium. तो columnar epithelium, these are column like tall and slender cells. टॉल एंड स्लेंडर मतलब लंबे होते हैं और स्लेंडर मतलब पतले, ठीक है. लॉन्ग एंड थिन टाइप ऑफ सेल्स आर द कोलमनार एपिथेलियल सेल्स. इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज जनरली लोकेटेड एट बेस ऑफ द सेल. सेल का जो सबसे नीचे जो बेसल पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होता है इनका न्यूक्लियस. कोलमनार सेल्स की लोकेशन, तो कोलमनार सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. स्टमक और इंटेस्टाइन की जो इनरमोस्ट लाइनिंग होती है वो होते हैं कोलमनार एपिथेलियल सेल्स. ये कोलमनार एपिथेलियल सेल्स और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो है, इन दोनों में दो चीजें हो सकती है. आइदर देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, राइट, और देयर कैन ऑल्सो बी प्रेजेंस ऑफ सीलिया. क्या हो सकता है? माइक्रोविलाई भी हो सकता है और सीलिया भी हो सकता है. मतलब कई क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं उनके पास माइक्रोविलाई होता है
और कई कॉलमनार सेल्स के पास सीलिया होता है। तो माइक्रोविलाई कब होता है? जब एब्जॉर्प्शन का फंक्शन हो तो माइक्रोविलाई होता है, और जब सीलिया का फंक्शन मतलब कुछ सब्सटेंस को आगे पास करना है, राइट, बिकॉज सीलिया विल बी शोइंग अ whip like movement, and due to this movement what will happen, the substances will roll around forward in a specific direction. तो उस केस में कॉलमनार सेल्स के पास क्या होता है? सीलिया। क्यूबॉइडल सेल्स के पास भी सीलिया हो सकता है। उस केस में एपिथेलियम को कहा जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहते हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम। तो हमने अभी बात की कि 3 तरह के होते हैं सेल्स। कौन से? स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। पर एडिशनल क्या हो सकता है? क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम, कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। मतलब अगर उनके पास सीलिया है तो हम ऐड करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ अबाउट सीलिएटेड एपिथेलियम। तब तक के लिए स्क्वैमस का लोकेशन याद रखना है, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई। क्यूबॉइडल का याद रखना है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड यू हैव टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। कॉलमनार में याद रखना है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये तीनों आपको लोकेशंस एंड द स्ट्रक्चर्स यू हैव टू रिमेंबर। So as I said that cuboidal cells and columnar cells, they can have also presence of microvilli, but they can also have the presence of cilia. So if they have presence of cilia, such an epithelium is called ciliated epithelium. So now we mention the topic ciliated epithelium. तो हम सीलिएटेड एपिथेलियम कब कहेंगे? When cuboidal और columnar cells, cuboidal cells और columnar cells have presence of cilia on their free surface. ठीक है, तो जब क्यूबॉइडल सेल या कोलमनार सेल के पास उसके फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। एंड दिस सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस in specific direction, right? क्या होगा कि सारे ही जो सीलिया होंगे they will be moving in one direction and therefore they will allow some substance to move forward. तो ऐसा कहाँ पे जरूरत होती है हमारी बॉडी में? So it is present in the hollow tubes, like it is present, हम लोकेशन लिख देते हैं, it is present in the lining of hollow tubes like bronchioles and fallopian tube. कहाँ पे हो सकते हैं? ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब। देखिए क्या लिखा है, सीलिएटेड एपिथेलियम कब कहा जाता है? व्हेन क्यूबॉइडल या कोलमनार सेल्स पे जब यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट हो उनके फ्री सरफेस पे, मतलब ये एक क्यूबॉइडल सेल है और इसके फ्री सरफेस पे क्या होगा? सीलिया। तो अगर सीलिया प्रेजेंट है तो ऐसे क्यूबॉइडल सेल को हम क्या कहेंगे? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सीलिया जो होता है वो हेल्प क्या करेगा? तो यहाँ पे से कोई भी सब्सटेंस को अगर आगे मूव होना हो और वो खुद से मोटाइल ना हो, मतलब वो सब्सटेंस खुद मूव ना हो सकता है पर सीलिया की मदद से मूव करना पड़ेगा, तो ऑल द सीलिया विल बी शोइंग अ मूवमेंट इन सच अ वे दैट दिस सब्सटेंस विल मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो कोई भी सब्सटेंस को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए
देयर इज प्रेजेंस ऑफ द सीलिएटेड एपिथेलियम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन द हॉलो ट्यूब्स। हॉलो ट्यूब्स मतलब इंटरनली जो हॉलो हो, ठीक है। जैसे कि ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंक्यूल्स में मूव क्या करना होता है? म्यूकस। हमारी जो ब्रोंक्यूल्स होती है उसमें म्यूकस रिलीज होता है और ये म्यूकस को रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल ब्लॉक द पैसेज ऑफ एयर। तो म्यूकस को हटाने के लिए कौन से सेल्स होते हैं? सीलिएटेड सेल्स। सेम वे फेलोपियन ट्यूब में एग जो है, वो एग जो होता है फीमेल्स में वो नॉन मोटाइल होता है, तो एग को आगे बढ़ाना, मूव करना हो अगर फेलोपियन ट्यूब में, तो ciliated cells are necessary. So here we have mentioned about the ciliated epithelium. तो आपको squamous, cuboidal, columnar epithelium and their modification which is called ciliated epithelium. These are the 4 types of epithelium to discuss, right? ये सारे किसमें आते हैं? सिंपल एपिथेलियम, क्योंकि सारे सिंगल लेयर्ड है। अब हम बात करते हैं that some of the cuboidal and columnar cells can also secrete several substances. So we are mentioning next, that is glandular epithelium. Glandular epithelium means some cuboidal and columnar cells are specialized to secrete certain specific substances. मतलब कैसे होते हैं नेचर में? सिक्रेटरी। अभी तक जिनके पास माइक्रोविलाई था वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जिनके पास सीलिया है वो कोई मटेरियल को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो और भी तरह के एपिथेलियम हो सकते हैं, जैसे कि द वन विच आर स्पेशलाइज्ड टू सिक्रेट समथिंग, जो सिक्रीशन का काम करते हैं। तो ये जो सिक्रीशन करते हैं ऐसे एपिथेलियल को क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सच एन एपिथेलियम, such epithelium which is secretory in nature, जिसका काम secretion है, so such epithelium is called glandular epithelium. ठीक है, क्योंकि उनका काम secretion का है इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? glandular epithelium. 2 तरह के glands होते हैं, that is either there can be a single cell which is secreting the substance, or there can be a group of cells which is secreting a substance. यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात की, पर एक सिंगल सेल भी हो सकता है जो सिक्रीशन का काम करता है, और पूरा एपिथेलियम भी हो सकता है जो मिलके सिक्रीशन का काम कर रहा है, राइट? तो यूनिसेल्युलर मतलब अ सिंगल सेल which is secretory, and multicellular मतलब group of cells that are secretory. तो सिंगल सेल है और सिक्रीशन का काम करता है, तो आपको याद रखना है लोकेशन गॉबलेट सेल्स, the one which are releasing mucus, ठीक है? तो गॉबलेट सेल एक सिंगल सेल है और वो क्या काम करता है? सिक्रीशन का। तो सिंगल सेल कैन ऑल्सो बी सेड एज ग्लैंड। जरूरी नहीं है कि सारे ग्लैंड्स बड़े बड़े हो और मल्टी सेल्यूलर हो। सम ग्लैंड्स कैन बी अ सिंगल सेल ऑल्सो एंड दे आर सिक्रेटरी। एज दे आर सिक्रेटरी इन नेचर दे आर नोन एज ग्लैंड्स। ओके, तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिंगल सेल सिक्रीशन का काम करे तो गॉबलेट सेल्स। मल्टी सेल्यूलर में आप कोई भी कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि उसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं एंड दे कलेक्टिवली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन। इसके अलावा अगर हम ग्लैंड्स को देखें तो 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है? सो ग्लैंड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये कौन से हैं? ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ whether they are single celled or multi cell, ठीक है? यहाँ पे ग्लैंड्स 2 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिलीज देयर सिक्रीशन, which are they?
endocrine glands and second are exocrine. Endocrine gland कब कहते हैं? A gland when releases its secretion in the nearby fluid, right? Whether nearby fluid is lymph or it is blood. तो ब्लड या लिम्फ में अगर सिक्रीशन पोर कर रहे तो उन्हें क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड मोस्टली व्हाट डू दे रिलीज? दे रिलीज हॉर्मोन्स एंड दे आर नॉट हैविंग एनी डक्ट्स. मतलब कोई ट्यूबुलर पैसेज नहीं होता, डायरेक्टली ही हार्मोन को रिलीज कर दिया जाता है इन द नियर बाय ब्लड और नियर बाय इंटरसेल्युलर फ्लूइड. तो उसे क्या कहते हैं? एंडोक्राइन कहते हैं. दूसरे तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कब कहा जाता है? व्हेन द ग्लैंड रिलीजेस इट्स सिक्रीशन इन डक्ट्स. ग्लैंड रिलीजेस द सिक्रीशन इन द डक्ट. तो जब डक्ट में रिलीज करते हैं और फिर डक्ट विल बी गोइंग ऑन टू द स्पेसिफिक लोकेशन एंड रिलीजिंग इट्स सिक्रीशन, तो उसे एक्सोक्राइन कहते हैं. और एक्सोक्राइन जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद डक्ट्स, राइट? एंड दे मोस्टली रिलीज सलाइवा और यू कैन से म्यूकस और ऑयल ग्लैंड्स. ठीक है, एंजाइम्स, वैक्स, ऐसे सारे सब्सटेंसेस कौन रिलीज करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. जबकि एंडोक्राइन क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब क्यूबॉइडल सेल्स या कोलमनार सेल्स जिनके पास सीलिया होता है, दे आर प्रेजेंट इन योर ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब. ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो एपिथेलियल सेल्स सिक्रीशन का काम करते हैं उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, जो आइदर सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है. सिंगल में गॉबलेट, मल्टी सेल्यूलर में सलाइवरी ग्लैंड्स. ग्लैंड्स एंडोक्राइन भी होते हैं, एक्सोक्राइन भी होते हैं. जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं वो एंडोक्राइन, एंजाइम्स रिलीज करते हो तो एक्सोक्राइन. दूसरा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट एसोसिएटेड नहीं होती, मतलब सिक्रीशन डायरेक्टली दिया जाता है इनटू द नियर बाय फ्लूइड, whereas here they are associated with ducts. So that is about the two types of glands. In the next lecture we will talk about compound epithelium.